Good morning student. Welcome to your political science class. And you know our political theory book is going on. In our last classes we completed our chapter number 2, that was freedom. In freedom we discussed that freedom is one of the important concept of political theory. After freedom, now we are going to start our chapter number 3, that is equality. Chapter number 3 is equality. In this class, we will discuss the first part of the chapter, that is the meaning of equality and what is natural and social inequalities and equality of opportunity. Different topic which will be covered. They will be the why does equality matter. Second one, the idea of this equality given by which revolution? Liberty, equality and fraternity by French Revolution. And what is the meaning of equality? Equality of opportunity, what is this? And what are natural and social inequality? This is the first part of the chapter which we will cover today. First one, देखिए अगर हम why does equality matter, अगर हम इसकी बात करें कि इक्वलिटी की क्या क्यों होनी जरूरी है, इक्वलिटी क्या मैटर करती है, तो हम कहेंगे कि इक्वलिटी इज ए पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया दैट हैव इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम मेनी सेंचुरी. शुरू से ही हम कई सेंचुरी से बात करें तो आइडिया ऑफ इक्वलिटी जो है इधर बाय मॉरल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें तो दैट आइडिया इज़ गिवन फ्रॉम सो मैनी सेंचुरी. शुरू से ही ये आइडिया जो है इक्वलिटी का दिया गया. अगर हम अपने रिलीजियस ग्रंथ की बात करें तो उनके अंदर भी आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज़ गिवन in one form and or the other, and all the religions in their views, in their ideas had discussed the idea of equality कि all should be treated as equal, all are the all people are the sons or the daughters or the of the God, same God, all are equal, no discrimination should be there बिटवीन ह्यूमन्स. ये आइडिया जो है हमारे हर रिलीजन में बात की गई है. और इसके साथ साथ अगर हम पॉलिटिकली कंसेप्ट की बात करें तो इक्वलिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन और सेक्स. किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको बराबर माना जाए. ये आइडिया भी पॉलिटिकली जो कि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा गया है. और जब हम 18th सेंचुरी की बात करें, द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन gave the idea of this a freedom or equality was given by the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो ये आइडिया है वो दिया गया. और जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो दिस रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द फ्रांस एंड दिस रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट द एब्सोल्यूट रूलर लाइक लुई 16. People were against Louis XVI as he had imposed so many taxes on the people and subsistence crisis was there. After that people protested and this was a revolution which took place in 1789. After in this revolution the revolutionaries had given the idea of liberty, equality and fraternity. So the idea of liberty, equality was given by the फ्रेंच रेवोल्यूशन. नॉट ओनली दिस, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, इन द लास्ट चैप्टर आई टोल्ड यू अबाउट द नेल्सन मंडेला, हाउ ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक, where there was discrimination with the black people by the white people. White majority, they were discriminating against the black in South Africa, and there was racial discrimination. The policy of apartheid was there.
one leader protested against their freedom in South Africa. और अगर हम एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ की बात करें, इन इंडिया देयर वाज कॉलोनलिज्म, देयर वाज द ब्रिटिश रूल, और वहाँ पे भी कैसे जो ब्लैक पीपल, इंडियंस वर कॉल्ड एज ब्लैक and they were being discriminated by the white people or the European people. They were not given different type of rights. Racial discrimination was there. Even महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया इसी अपार्थाइड का, when he had gone to South Africa, और वहाँ पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा तो इस चीज़ का उन्होंने प्रोटेस्ट किया. आफ्टर दैट अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो again there is discrimination with Dalit और हरिजन और इसके साथ women, and this discrimination जो है वो हमारी सोसाइटी में चलता आ रहा है और inequality is there. तो अगर हम कहें it is inequality rather than equality which is most visible around us in the world. आज हम inequality की बात ज़्यादा करेंगे कि जो हमें नज़र आ रही है वर्ल्ड में इक्वालिटी की बजाय. देखिए ये कैसे है कि नॉट ओनली इन द इंडियन सोसाइटी बट एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो इन सो मैनी सोसाइटी दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन वन फॉर्म और द अदर एज कंपेयर टू इक्वालिटी. तो अगर ये हम बात करें कि कैसे ये इनइक्वालिटी हमें नज़र आ रही है इन आवर कंट्री, वी कैन सी सो मैनी स्लम एरियाज. And in these slum areas, near the slum area, there are big bungalows of the rich people, and the rich people number is less. The poor people, the poor dwellers, and those who are living in slums, their number is more in India. Or even there are schools in India or in the world with world-class facilities, but some other schools are there in other part of the picture, like वो school even their basic facilities are not provided. Drinking water is not there. Even they other facilities like toilets and other facilities are not availed by the so many students of the different schools. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से आज हम इक्वालिटी की जब बात करने जा रहे हैं कि इक्वालिटी क्या है, तो इनइक्वालिटी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है वर्ल्ड में. और इसके लिए एक फैक्ट शीट आपकी बुक में दी हुई है कि किस तरह से इंडिया में अमीर लोग जो हैं देयर नंबर इज़ लेस एंड दे आर अवेलिंग मोर फैसिलिटीज़ एज कम्पेयर टू द पुअर पीपल विच आर इन मेजॉरिटी बट दे आर अवेलिंग लेस फैसिलिटीज़. उनका रिसोर्सेज पे कंट्रोल जो है वो नहीं है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज देयर इन द हैंड्स ऑफ द रिच पीपल. और तो इन दिस वे वी फेस ए पैराडॉक्स. एवरीवन, अगर हम बात करें, एवरीवन असेस द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, येट लेकिन इसके बावजूद भी एवरीवन इज फेसिंग a different type of inequality. Everyone encounter inequality. We live in a complex world of unequal wealth, opportunity, work situation and power. कैसे हम आज की दुनिया में जहाँ पे रिसोर्सेज की अनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, कैसे हम जो अपॉर्चुनिटी की इनइक्वलिटी है और कैसे वर्क सिचुएशन की इनइक्वलिटी है, कैसे पावर की इनइक्वलिटी है, ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं. तो दिस इज ए इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू मस्ट नो दिस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. आप एक पॉलिटिकल साइंस जो के स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इक्वालिटी के बारे में पढ़ें. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड वेयर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, हाउ कैन वी एलिमिनेट डिफरेंसेस ऑफ different type based on the income and based on the status. कैसे हम स्टेटस और इनकम के नाम पे इनइक्वालिटी को मिटा सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी आर वी आर परसुइंग.
तो हमारा ये पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। तो हमारी नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इक्वेलिटी। इक्वेलिटी क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस पिक्चर। आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर क्या है, देखिए ये कलर्ड सर्व इन रियर, नो डॉग्स, निग्रोस, मैक्सिकन्स एंड ड्रिंकिंग फाउंटेन, वाइट फॉर one arrow is there for white, one arrow is there for black. This is the picture of South Africa. जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि कैसे जो साउथ अफ्रीका में there was racial discrimination, the policy which was followed in South Africa was the segregation. सेग्रीगेशन क्या था कि इन अलग पार्क, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पार्क, डिफरेंट रेस्टोरेंट फॉर ब्लैक, डिफरेंट वाटर टैप्स फॉर ब्लैक, different fountain for black, different for white. Our schools were different for even restaurant, all the park, public park, all were different for the black and for the white, and rest room white only. कि किस तरह से ये एक पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है इस इनइक्वालिटी की कंसेप्ट को, किस और इसके साथ साथ ऑल ऑफ दीज डिस्टिंक्शन, अगर हम इन सारे डिस्टिंक्शंस की बात करें कि दिस डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस वर देयर बिटवीन ह्यूमन बीइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर एंड दोज अपीयर टू मोस्ट ऑफ देम आर अनएक्सेप्टेबल, कि कलर के नाम पे, रिलीजन के नाम पर कैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन थे, तो कैसे अपार्थाइड की पॉलिसी जो थी वो फॉलो की जाती थी। लेकिन अगर हम ये कहें कि ऑल शुड बी गिवन टू सम रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल शुड बी गिवन सम रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द कॉमन ह्यूमैनिटी, वी ऑल बिलोंग टू ह्यूमैनिटी, कॉमन ह्यूमैनिटी, एंड ऑल शुड बी गिवन कॉमन रिस्पेक्ट। लेकिन ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें, नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे। हम ये नहीं कह सकते कि सारों को एक ही थाली में, अगर एक ही उसमें परोया जाए, एक ही माला में सब मोती परोए जाएँ, कि ट्रीटिंग लोगों को साथ इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि सबके साथ आइडेंटिकल लोग हों, क्योंकि हर सोसाइटी जो होती है उसके अंदर देखिए नो सोसाइटी ट्रीट ऑल द मेंबर एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशन। अगर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिवीज़न ऑफ लेबर। हम डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें कि सारी सोसाइटी जो है वो किस पे वर्क करती है, कि वर्क की जो डिवीज़न है, some are doing one work, some are producing things like farmers, some are doing job, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो टेक्निकल वर्क में लगे हुए हैं, कुछ जो हैं हमारे लिए एग्रीकल्चर का मतलब फार्मर जो हैं दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। तो all the work in the society is divided based on the division of labor. अगर हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और इसके साथ साथ आर्मी जनरल की बात करें तो दे enjoy special official rank and status and that does not go against the notion of equality. अगर प्राइम मिनिस्टर को जो इतना बड़ा ओहदा दिया जाता है, इसके साथ ही आर्मी जनरल को इतना बड़ा स्टेटस दिया जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इक्वालिटी की स्टेटस मतलब जो है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो दे आर गिवन सम प्रिविलेज, सम स्पेशल राइट, एंड ये जो इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है कि ये अगर उनको स्टेटस दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, सबको बराबर दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। दैट प्रोवाइडेड देयर प्रिविलेज एंड नॉट मिसयूज। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनइक्वालिटी तो तब है जब एक बच्चा जो स्लम एरिया में रह रहा है, दैट चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग एजुकेशन, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, and the child is not getting nutritious food उसको नहीं मिल रहा, that may appear unfair to that child। तो इस तरह से इसको हम इनइक्वालिटी का नाम कहेंगे। पहली सिचुएशन में जब एक पर्सन को अच्छा स्टेटस मिलता है तो उसको हम इनइक्वालिटी का दर्जा नहीं देंगे। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि विच डिस्टिंक्शन एंड विच डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट, किन डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट कर लें,
किन डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट ना करें। और तो ऐसे में व्हेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली, they are born in a particular religion, say race, caste or gender, we regard it an unacceptable form of inequality. हम देखो, जब लोगों के साथ कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे डिफरेंसेस किया जाएगा तो हम इसको अनएक्सेप्टेबल बोलेंगे, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ऑल आर इक्वल। तो फिर उनको कास्ट के नाम पे, जैसे कि पहले होता था हरिजन के साथ, दलित के साथ, they were considered as the low caste, they were being discriminated. So this is unacceptable form of inequality. तो some देखिए, लेकिन उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी दे जो है दैट इज गिवन टू ऑल, कि गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल, कि सब पर्सन को अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाए। द पर्सन विद हिज कैपेबिलिटी कैन रीच टू एनी हाईएस्ट पोस्ट। अब कुछ में टैलेंट ज़्यादा है, कुछ सम पर्सन कैन बी गुड म्यूजिशियन, सम कैन बी गुड क्रिकेटर, तो अपॉर्चुनिटी तो सबको मिली। कुछ की नेचुरल कैपेबिलिटी की वजह से वो पर्सन जो था वो अपनी एक फील्ड में, एक स्फीयर में बहुत ज़्यादा आगे जो था वो पहुंच गया। तो इस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी एज अकॉर्डिंग टू अगर हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, उसमें भी हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है, फंडामेंटल राइट विच इज़ गिवन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, अकॉर्डिंग टू दिस राइट लोगों को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी जो दी गई है, और कोई भी अपनी कैपेबिलिटी से किसी भी हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच सकता है। तो आगे व्हाट आर नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी की बात क्या करें, क्या होती है ये नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी। देखिए, नेचुरल इनइक्वालिटीज आर दोज दैट emerge between people as a result of their different capability and talent. उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटी और डिफरेंट टैलेंट की वजह से हम कहते हैं ना शुरू से ही कि ये पर्सन जो है अपनी कैपेबिलिटी से बहुत हाईएस्ट पहुंच गया, हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच गया अपनी कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट की वजह से। तो कई सम ऑल आर कैन नॉट बी इक्वल। हम नेचुरली कहें तो कुछ इन ए वन क्लास ऑल्सो से ऑल द स्टूडेंट आर स्टडिंग बट सम आर डूइंग वेरी गुड, सम आर नॉट डूइंग वेरी गुड। तो उनकी कैपेबिलिटी जो टैलेंट है उनमें इनइक्वालिटी होती है नेचुरल, कि कुछ ज़्यादा अच्छा सा पिकअप कर पाते हैं, कुछ उतना अच्छा जो है वो पिकअप नहीं कर पाते। दीज काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज जो होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली। अब वो सोशली इनइक्वालिटी से वो डिफरेंट होती हैं, और जो सोशली इनइक्वालिटीज़ होती हैं दो दे आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोसाइटी, वो सोसाइटी में ही जो है वो होती हैं। और जैसे कि किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से मना करना और किसी एक सेक्शन की एक्सप्लॉयटेशन होना, जैसे वन सेक्शन इज एक्सप्लॉइटिंग द अदर, तो दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। और नेचुरल इनइक्वालिटीज दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट कैपेबिलिटी विच पीपल आर बॉर्न। उसी से वो जैसे ही लोगों का बर्थ होता है उसी से ही कैपेबिलिटी और टैलेंट जो है वो बनती है। एंड सोशल इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वर्क है दैट इज प्रेफर्ड ओवर मैनुअल वर्क। उसको क्योंकि नेचुरली है कि एक पर्सन जो इंजीनियर, डॉक्टर होगा with his capability and talent, and he or she will be preferred in the society as compared to a person who is doing manual work like one labor, उसको naturally prefer किया जाएगा। तो इसके साथ साथ ही कुछ this distinction is useful in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequality in the society। और फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर समाज में सोशल इनइक्वालिटी की बात करें, जैसे इंडिया में कितने टाइम से वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, दे वर नॉट गिवन सो मेनी राइट। तो सोशली उनके साथ इनइक्वालिटी थी, और आफ्टर दैट दे वर नॉट गिवन द राइट एज इक्वल टू मैन। But our so many social reformers like Jyotiba Phule and Swami Dayanand, Swami Vivekanand, they have worked for the rights of the
women. और पर्दा सिस्टम, विडो मैरिजेस वर नॉट अलाउड, ये ऐसे समाज में जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको सबको ख़त्म किया गया। और तो ये सोशल इनइक्वालिटी, दीज आर सोशल इनइक्वालिटीज जो समाज में पाई जाती थी। और आफ्टर दैट डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट कुड बी जस्टिफाइड। अगर उनको हम ये कह सकते हैं कि वुमेन को जो अगर हम डिनाई करते हैं तो इक्वल राइट देने से, तो क्या हम इसको जस्टिफाइड करेंगे? अब ब्लैक पीपल इन अफ्रीका, दे वर कंसिडर्ड बाय देयर कॉलोनियल मास्टर टू बी लेसर इंटेलिजेंट, उनको लेस इंटेलिजेंट माना जाता था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि साउथ अफ्रीका में था, इंडिया में वुमेन के साथ था, दैट आर नोन एज सोशल इनइक्वालिटी। इनको हम सोशल इनइक्वालिटीज़ का नाम देंगे। तो इसके साथ साथ जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, दे नीड नॉट बी ऑलवेज, ये नहीं कह सकते कि जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं दे आर अनअल्टरेबल, उनको अनअल्टरेबल है कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। नेचुरल जो डिफरेंसेस हैं दे कैन बी अल्टरेटेड। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे पर्सन टुडे, आज अगर हम ब्लैक पीपल की बात करें, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे कैन रीड, राइट, दे और ब्रेल की वजह से वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके साथ एक फिजिशियन, फिजिक्स के जो एक वन साइंटिस्ट हुए, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने किस तरह से, वो बोल नहीं सकते थे, मूव नहीं कर सकते थे, बट विद ही हैड मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज जो नेचुरल इनइक्वालिटी हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। विद द कैपेबिलिटी ऑफ ए मैन, दीज नेचुरल इनइक्वालिटीज कैन बी अल्टरेटेड। इनको भी अल्टरेशन इसमें भी जो है वो हो सकती है। तो इन दिस वे हम कहेंगे इनइक्वालिटी अराइजेस फ्रॉम आवर चॉइस, फैमिली और circumstances. With this, this part is complete. First part, you are supposed to read the chapter and complete the work. अगला हमारा part है types of inequality, and the last part we will do it in the next classes. Thank you all.